because of their intelligence, but because the seats in IITs and NITs are limited. So eventually you have to turn to the Maharashtra state colleges, where there are 360 plus colleges and almost more than 1 lakh seats available. The unfortunate part is that in these colleges, the admissions are given by another criteria, that is MST CET. There are some seats in some colleges where the admissions can be on the basis of all India test such as JEE Main. So अगर आपकी रैंक्स JEE Main में लो है, लेकिन आपने CET भी दिया है या CET नहीं भी दिया है, तो भी आप ये कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Details and registration for this cap round is to be done on the official website जो यहाँ पे डिस्प्ले किया है. मैं श्वेता मैडम है यहाँ पे, श्वेता मैडम को मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि ये जो साइट, ये जो एड्रेस है इसका, this address you please share on this Zoom channel or whatever is the way. Okay. Okay, sir. I believe that most of you have already gone through all this process because ये brochure available होने को भी काफी time हो गया है, almost 10 days at minimum हो गए. So you must have downloaded the brochure. I hope you must have gone through it very carefully. Our efforts are just to channelize the process. और अगर जिन्होंने नहीं किए हैं वो ये साइट पे जाके डाउनलोड भी करें और उसको समझने की कोशिश भी करें. मूविंग नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस है इसकी एप्लीकेशन करने की, तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा. ऑनलाइन रजिस्टर करने का मतलब है यू हैव टू विजिट द वेबसाइट, you have to fill and submit online application form and upload the required documents from anywhere, obviously through the computer connected network to the internet. ये first part है. Second part which is very vital, first part शायद आपने पूरा कर भी लिया होगा, नहीं किया होगा तो आपके पास टाइम है अभी, मैं वो डेडलाइंस भी बताऊंगा. इसमें सेकंड पार्ट में फिर ये आता है कि जो एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट दिए वो वेरीफाई करेंगे. सो वेरीफाई करने के लिए देयर आर 2 channels, either online which is called as e-scrutiny center or from the offline from the authorized allocated centers. इनकी लिस्ट भी आपको वहां मिल जाएगी वेबसाइट पे, या फिर श्वेता मैडम बाद में एक्सप्लेन करेगी ये कहाँ देखनी है और कैसे देखनी है. Moving next, now those who have registered for MSTCT, it's very important, they are not required to pay any additional fee for registration for this cap round. However, जो candidates ने केवल JEE Main दिया है, irrespective whether they have qualified or they are not qualified for advanced, but they have appeared for JEE Main, but they did not register for MSTCT, उन्होंने MSTCT नहीं दी है, उनको फीस इसके काउंसलिंग के लिए भरनी पड़ेगी थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी लिखा है, और उसकी जानकारी भी अगर ऐसे कोई केस है तो उनको मिल सकती है. I think in ICAD, I don't expect any such case. You have to first, before we begin the next process, you have to first understand how this cap round works. क्योंकि इसमें इतने ज्यादा distributions, partitions, confusions बहुत सारे हैं, type of institutions ही बहुत सारे हैं. I'll tell you in brief, without making much of confusion. ज़्यादा दिमाग में रखो मत,
कन्फ्यूजन्स बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको एक ये समझना है कि ये कैप राउंड जो होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का, उसके लिए कुछ निर्धारित सीट्स वो भर सकते हैं। दिस अथॉरिटी कैनॉट फिल ऑल द सीट्स ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो हम लगभग कैप सीट्स जो होती है वो कई हिस्सों में हम बांट सकते हैं और वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। सबसे पहला होता है कि महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स के लिए क्या है। दूसरा होता है महाराष्ट्र का कैंडिडेट ऑल इंडिया सीट्स में भी कॉम्पीट कर सकता है, लेकिन बाहर का स्टूडेंट महाराष्ट्र स्टेट में कॉम्पीट नहीं कर सकता। सो महाराष्ट्र स्टूडेंट हैज गॉट टू चॉइसेस, आइदर ही शुड मूव फ्रॉम द महाराष्ट्र स्टेट कोटा और ही कैन इवन गेट इनटू ऑल इंडिया सीट्स कोटा। देन there are many minority institutions. In those institutions, religious or linguistic, there is a specified minority quota which is not filled here right now. Okay, so for example, there are government colleges or government aided colleges or university departments, and स्पेसिफिक केस जो दिया है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी एक्सक्लूडिंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी है, इसमें फिर ये कैटेगरी में आपको दो अलग अलग टाइप के या तीन अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशंस करने पड़ेंगे। वन इज द ऑटोनोमस। ऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस आर नॉट ऑटोनोमस, बट सम गवर्नमेंट कॉलेजेस दे आर ऑटोनोमस। उनके लिए 100% ऑफ देयर सीट्स विल बी फिल्ड एट द स्टेट लेवल. There is no home university quota. There is no other than home university quota. There is no quota for all India. There is no quota for institution level. There is no quota for minority. So all 100% seats will be filled, category wise, of course, will be filled by the cap. There are other government or aided colleges which are not autonomous or university department. इसमें जो भी 100% सीट्स उनकी रहती है, उसमें सबसे पहले 30 और 70 डिस्ट्रीब्यूशन होता है. So 70% will be for the home university candidates and 30% will be for the other than home university participants. For example, if you take case of our region, if you belong to Nagpur University region, means you belong to the 4 districts which are attached to the Nagpur University. तो बाद में हम चार्ट में बताएंगे कौन से है. तो ऑब्वियसली नागपुर है, मेरे ख्याल से भंडारा होगा, ऐसे 4 जो होंगे, दैट लिस्ट विल गिव यू. तो वो नागपुर यूनिवर्सिटी की है, तो नागपुर यूनिवर्सिटी रीजन में 70% कोटा रहेगा होम यूनिवर्सिटी के लिए और 30% रहेगा बाकी महाराष्ट्र के लोगों के लिए. यहाँ पर भी ऑल इंडिया कोटा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यू टेक केस ऑफ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर, like that. Minority quota भी नहीं है, institution level भी नहीं है. And majority of the good colleges, reputed colleges, belong to this category. So our try should be to get into this category of colleges. Specifically for chemical engineering, there is an Institute of Chemical Technology, Mumbai. पहले उसको डिपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी का, यूडीसीटी करके, अभी आईसीटी करके हो गया है. उसमें एक्चुअली बीइंग यूनिक थिंग इन महाराष्ट्र, ओनली 70% कोटा इज स्टेट लेवल एंड 30% इज ऑल इंडिया. यानी बाहर के, महाराष्ट्र छोड़ के बाहर के भी स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएसटीसीटी नहीं दिया है, वो भी आईसीटी ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ए यूनिक प्लेस ऑफ लर्निंग. और आप भी दोनों में से जा सकते हैं. 70% एमएसटीसीटी के थ्रू कैप राउंड से जा सकते हैं, या फिर आप ऑल इंडिया, यानी कैप राउंड से ही होगा, बट ऑल इंडिया कोटा जो होता है उसके थ्रू जेईई मेन क्वालिफाई जो आपका नंबर है उससे भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर इंटरेस्टेड इन दी अलाइड ब्रांचेस ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडी टू गो टू मुंबई. देन देयर इज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लोनारे. हियर स्टेट लेवल कोटा इज 85%, लेकिन 15% जो बचा हुआ है, इट इज रिजर्व फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोकण रीजन. सिर्फ बहुत सारे इसमें क्राइटेरियाज है, वो आपको समझने चाहिए अच्छे से.
क्योंकि जब आप सीट मैट्रिक्स भरने जाओगे तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमने कौन से इसमें जाने की या मिलने की संभावना है। ये यूनिवर्सिटी में भी ऑल इंडिया सीट्स नहीं है, इंस्टीट्यूशन लेवल नहीं है, माइनॉरिटी कोटा भी नहीं है। There are some government or aided institutions which are minority colleges. Being a minority college, there is a minority quota of 50% fixed. और जो बचा हुआ है तो उसमें से फिर से उसमें दो कैटेगरीज होती है। अब ऑटोनॉमस होगा तो 50% स्टेट लेवल से भरा जाएगा और नॉन ऑटोनॉमस होगा तो 35 यानी 70% ऑफ 50% विल बी थ्रू फॉर होम यूनिवर्सिटी and 30% of 50%, that is 15% for other than home university. अब जो भी कॉलेज में आप जाना चाहते हो उसका स्टेटस पता करिए कि ये कौन से कैटेगरी में आता है आउट ऑफ 1, 2, 3, 4. Now we have not discussed anything about other institutions which are unaided. So I'll take you to the next chart. And there are again two types of institutions here. The first is excluding minority institutions which are unaided private. And second category is unaided but minority. Even in Nagpur, you will get several colleges which fall in this category. Now, in first category, फिर से दो डिवीजन होती है, ऑटोनॉमस, नॉन ऑटोनॉमस। यानी कोई भी कैटेगरी आप लीजिए उसमें दो डिविजन होने वाले कॉलेजेस में, कोई भी कॉलेज हो उसमें दो तरह के होंगे कॉलेजेस, या तो ऑटोनॉमस होंगे या फिर नॉन ऑटोनॉमस होंगे, और दोनों के लिए क्राइटेरिया अलग होगा। जनरली ऑटोनॉमस का क्राइटेरिया अलग होगा और नॉन ऑटोनॉमस में जो होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी वो नॉन ऑटोनॉमस में हमेशा मिलेगा। लेकिन ऑटोनॉमस में भी कितना फिल कर सकते हैं सीट्स ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल वी आर डिस्कसिंग अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। So all these unaided सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, स्टेट लेवल अटक गया है। I'm sorry, it was mute. So I was telling you, in this category number 1, 65% will be filled by state level, irrespective whether you are in the home university or you are other than home university. और अगर ये कॉलेजेस अनएडेड है, नॉन ऑटोनोमस है, नॉन माइनॉरिटी है, तो ये 65% कोटा जो रहता है स्टेट लेवल का उसको और दो पार्ट में डिवाइड होगा, होम यूनिवर्सिटी एंड अदर देन होम यूनिवर्सिटी. So 70% of 65, that is 45.5, will be for home university students, and 30% of 65, that is 19.5%, will be other than home university students. यानी नागपुर का अगर कोई कॉलेज होगा जो माइनॉरिटी भी नहीं है, ऑटोनॉमस भी नहीं है और अनएडेड है, तो उसके लिए 45.5% seats will be for you people because it will be for your home university. और बचे हुए बाकी यूनिवर्सिटीज एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 19.5% कोटा उनके लिए भी होगा. तो व्हेन यू सिलेक्ट द चॉइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that where you are going to which college, it is
within your home university area or it is other university area. Accordingly, your cutoff, closing, everything will change. और जो अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है वो भी नागपुर में है, उसमें भी दो केसेस होती है, ऑटोनॉमस भी है या फिर नॉन ऑटोनॉमस है। तो बीइंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन 20% कोटा तो उनका इंस्टीट्यूशन लेवल का फिक्स्ड है, वो दिया है उनको। ऊपर से मिनिमम 15% कोटा इज फॉर माइनॉरिटी, विच इज अगेन गिवन टू द इंस्टीट्यूशन। 15% सीट्स उनकी रहेंगी ऑल इंडिया। अब आपको वर्कआउट करना है कि बची सीट्स कितनी है। नाउ बची हुई सीट जो रहती है, these seats are offered to cap round. 15% जो ऑल इंडिया वो आ जाएगा इस कैप राउंड में, लेकिन मिनिमम जो उनका है और 20% है वो छोड़ दीजिए आप। सो कैप राउंड सीट्स विल बी टोटल सीट्स माइनस ये दो जो है मिनिमम 51% 20%, वो छोड़ दीजिए आप। बची हुई सीट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगी और फिर ऑटोनॉमस के लिए वो पूरे की पूरी भरी जाएंगी स्टेट लेवल पे रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी एरिया, और नॉन ऑटोनॉमस के लिए फिर जो भी सीट्स अवेलेबल है उसका फिर से 70% 30% करो, फिर वो भरी जाएंगी कैप राउंड से। अब यहाँ तक तो हम पहुंचे, तो आपको पता हो गया कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच में कितनी टोटल सीट्स कैप राउंड से मिलेगी, चाहे वो ऑल इंडिया मिलेगी, चाहे वो स्टेट लेवल की मिलेगी, चाहे वो होम यूनिवर्सिटी की मिलेगी या फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी कोटा में मिलेगी। आफ्टर दैट द रिजर्वेशन स्टार्ट्स। So 50% is for general category. Remaining 50% is already distributed as the reserved categories, OBC है, non बाकी है SC ST है, ये सब में वो बढ़ गया। ये होने के बाद में फिर और आएगा रिजर्वेशन, गर्ल्स का आएगा, इसका आएगा, उसका आएगा, बहुत सारे आएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आएंगे, सब कुछ आएगा। So finally ऐसा होता है कि when you select a particular college, you have to see everything. जेंडर, कैटेगरी, यूनिवर्सिटी एरिया, और ये सब करने के बाद में आपको दिखेगा कि वो ब्रांच में आपके लिए सीट्स कितनी है। बड़े मुश्किल से 2-4 सीटें होंगी, 5-6 सीटें होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी उस कैटेगरी। सो आउट ऑफ सो मेनी लैक ऑफ सीट्स, अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू वेरी फ्यू सीट्स। कॉलेज सभी मिलेंगे लेकिन हर कॉलेज में सीट्स बहुत कम रहेंगी। तो ये बहुत केयरफुली आपको स्टडी करना पड़ेगा, एंड इट इज इवन मोर डिफिकल्ट देन द जोसा राउंड। I'll explain to you with the help of this flow chart, simple flow chart, how the process starts. Online registration जो ऑलरेडी शुरू हो गया है 2 नवंबर से, आज की 13 तारीख है, ये 18 तारीख तक ये चलेगा शाम को 5 बजे तक, जिसमें आपको रजिस्टर करना है। कैसे रजिस्टर करना है, अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो करो। और श्वेता मैडम, अगर टाइम मिलता है तो श्वेता मैडम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अप टू रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो वीडियो भी आप शेयर करेंगे। ये 5 बजे 18 तारीख को फिनिश हो जाएगा, इंक्लूडिंग अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। ये स्टेप आपकी खत्म हो गई। देन साथ ही साथ जैसे आप रजिस्टर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, उसके साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम भी शुरू है। यू कैन ऑप्ट फॉर द ई स्क्रूटिनी और द फिजिकल फॉर्म में, ऑफलाइन में वो सेंटर पे जाके वो स्क्रूटिनी कर सकते हैं। दैट विल बी वेल, दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 2nd द सेम डेट, बट फिनिश होगी 20 तारीख को। यानी जिसने लास्ट मोमेंट पे ये अपलोड वगैरह किया है उसको बाद में टाइम मिलना चाहिए, इसलिए 2 दिन और ये प्रोसेस चलती रही। एंड दैट प्रोसेस ऑफ स्क्रूटिनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल एंड ऑन 20 नवंबर को शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगा। दैट्स द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट। राइट नाउ वी आर इन दिस फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो भी आपको करना है वो आपको करना पड़ेगा ये डेडलाइंस के अंदर में। आपको एक बात बता देता हूँ, जो सीटी का रिजल्ट आया है उसमें उन्होंने परसेंटाइल दी है। पहले ऑफलाइन में मार्क्स देते थे, अभी परसेंटाइल आया है, लेकिन रैंक का कोई मतलब नहीं रहता उसमें, क्योंकि एमएसटी सीटी की सिस्टम ऐसी है कि जितने लोग अप्लाई करेंगे उन्हीं की मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर 1.5 लाख बच्चे बैठे और 70,000 ने ही अप्लाई किया तो मेरिट लिस्ट विल बी ओनली फॉर द 70,000।
दैट इज एनीवे गुड। तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में, अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आप डिटेल्स डाल रहे हो, तो आपको दोनों डिटेल्स डालने चाहिए, एमएसटी सीटी का भी डालना चाहिए और जेई कौन सी जगह अच्छा क्या मिल रहा है, डोंट फॉरगेट दैट। और फिर ये आपको डिस्प्ले, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी 22 तारीख को। मेरिट लिस्ट बनाने के बहुत सारे क्राइटेरिया है, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, उसमें हमको कुछ बहुत कर भी नहीं सकते। तो ये 22 तारीख को ये लग जाएगी। ये लगने के बाद में आपका ये बहुत बड़ा काम रहेगा कि इसको आप वेरीफाई कर लीजिए कि आपका नाम जो नंबर पे आ रहा है उस पे आपके जो डिटेल्स दिख रहे हैं वो सब सही है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मार्क्स गलत, आपका परसेंटाइल गलत लिया गया लोअर साइड पे, तो आपके रैंक नीचे दिख रही है। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन उसमें लगता है कि गलत लिया है, नाम, स्पेलिंग्स या जो भी उन्होंने मांगा था और आपने भरा था उसमें कुछ गलतियां अगर नजर आती है, पर्टिकुलरली स्कोर्स वगैरह में, कैटेगरी में, तो सब आपको देखना चाहिए। और अगर डिस्क्रिपेंसी है, आपके हिसाब से बराबर नहीं है, तो आपको ग्रीवांसेस तुरंत करने चाहिए। तो यू हैव टू सबमिट द ग्रीवांसेस फ्रॉम नेक्स्ट डे, दैट इज 23rd, 24th एंड 25th। 3 दिन आपको दिए ग्रीवांसेस के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीवांसेस नहीं होने चाहिए, अगर है तो सेटल होने चाहिए। बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा गलत हो गया, ये ऐसा था ही नहीं, देन यू आर विल नॉट गेट एनी हेल्प। बेस्ड ऑन दिस ग्रीवांसेस रिड्रेसल, आपके अगर सही होंगे तो रिपेयर हो जाएंगे, गलत होंगे तो रिपेयर नहीं, आई मीन जस्टिफाई नहीं होंगे तो रिपेयर नहीं होंगे। फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएंगी जिसमें रैंक्स भी मिलेंगे आपको 1 2 3 4 लाइक दैट, अप टू जो जितने भी नंबर्स हैं। दैट इज कॉल्ड एज द फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसको हम रैंक लिस्ट भी बोल सकते हैं। इसमें आपकी जो नंबर्स है, दीज आर द नंबर्स विच टेल यू व्हाट इज योर पोजीशन। सो यू हैव टू वेट फॉर दिस इंफॉर्मेशन टिल 27th of November। ये इंफॉर्मेशन आने के पहले आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। तो ये जो टाइम है वो टाइम फ्रेम में चलते रहिए और वेट करिए। 27 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद में उसी दिन वो पूरा सीट मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं वो आपको मिल जाएगा। यानी कैटेगरी वाइज सीट्स पोजीशन कितनी अवेलेबल है, कौन से कॉलेज में, कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, कैप राउंड में, ऑल इंडिया में, ये सब डिटेल्स आपको 27 तारीख को डिक्लेयर होंगे जैसे मेरिट लिस्ट आ जाती है। तो अभी आपके पास में दोनों जानकारी आ गई है, सीट्स कितनी अवेलेबल है वो भी मालूम हो गया, कहाँ अवेलेबल है क्या है वो भी मालूम हो गया, और फाइनल आपका नंबर क्या है वो भी मालूम हो गया। अभी रियल प्रोसेस अभी स्टार्ट हो, यानी 27 तारीख को तक आपके दिमाग को कोई टेंशन होने की जरूरत नहीं, बाद में बहुत आएगा। 28 तारीख से क्या होगा, तो ऑनलाइन सबमिशन करना है, कंफर्मेशन करना है ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड 1। प्लीज रिमेंबर, जोसा में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको ऑप्शन फॉर्म एक ही बार भरना था, वो चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कैप के 2 राउंड्स होने वाले, लास्ट ईयर से 2 ही राउंड हो रहे हैं, पहले होते थे ज्यादा। तो ये दोनों राउंड के लिए आपको 2 बार संधि मिलेगी ऑप्शन फॉर्म भरने की। सो दिस प्रोसेस इज अगेन फॉर 3 days, 28th, 29th एंड 30th November अप टू 5 PM। ये तो मैंने बता दिया कि फॉर्म भरना है आपको, ऑप्शन फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं बाद में बताता हूँ। ओके, आफ्टर दैट यू कंटिन्यू दिस प्रोसेस एंड आई विल टेल यू नाउ द नेक्स्ट स्टेप्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन फॉर्म आपने भर दिया, कैसे भरना है वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन भर दिया। वो भरने के बाद में कंप्यूटर विल ऑटोमेटिकली गो थ्रू योर ऑप्शन फॉर्म्स एंड योर रैंक, एंड एक एक ऑप्शन करके आपका जब नंबर आता है तो एक एक ऑप्शन करके जो मैच होता है वो आपको सीट अलॉट करेगा। अगर आपके ऑप्शंस ऐसे भरे हैं कि एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा तो आपको सीट अलॉट नहीं होगी। सो देर आर 2 possibilities, either of round 1, either seat is allotted or seat is not allotted। आपको हमेशा की तरह एक केयर लेना है कि जब आप ऑप्शंस भरते हो तो पहला ऑप्शन ऐसा ऐसा मत भरिए कि जो बहुत इजीली मिल रहा है, आपको वहां जाने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको मिल गया, आई मीन लोअर ऑप्शन अगर आपने ऊपर डाल दिया तो फिर आपको कंपल्सरीली वहीं जाना पड़ेगा, देन यू डोंट हैव एनी अदर चांस।
तो पहला ऑप्शन जो रहता है ये हमेशा कैसा भरना वो भी मैं डिस्कस करूँ. सो द थिंग टू बी नोटेड इज इफ फर्स्ट चॉइस इज अलॉटेड बाय द कंप्यूटर then there is no choice to you. You have to accept the seat. और सीट एक्सेप्ट करने का मतलब होता है यू टू रिपोर्ट टू ARC, एडमिशन जो सेंटर होता है वहां पे आपको ARC में जाना पड़ेगा और वो सीट एक्सेप्ट कर देना पड़ेगा. जो भी फीस है फीस भरो, सीट की फीस, नॉट द काउंसलिंग फीस. डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होगा वो प्रोसेस ARC पे कंप्लीट करना है. उसके बाद में जो डेट्स दी है उसमें आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है. दैट इज फ्रॉम 3rd of December to 5th of December. 3, 4, 5 ये 3 दिनों में आपको इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है. पहले उसको ARC में कंफर्म करो. और अगर आपने एक्सेप्ट आपको नहीं करना है तो ये समझ लीजिए कि यू आर आउट ऑफ द काउंसिलिंग बिकॉज यू आर गिवन फर्स्ट चॉइस एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड. इसका मतलब आप बेवकूफ बना रहे हो हमको. जाना नहीं तो दिए क्यों. So you will be directly out of counseling process. You will not be considered for any admission now in the state colleges. However, if the seat allotted हो गई है आपको, लेकिन वो पहला चॉइस नहीं था आपका, दूसरा, तीसरा, 10वां, 50वां जो भी चॉइस है वो मिल गया आपको, तो फिर क्या करेंगे. फिर आपके पास 2 ऑप्शन है. अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हो तो आप आगे जा सकते हो फॉर राउंड 2. लेकिन I will advise you that you accept. ARC में रिपोर्ट करिए, इंस्टीट्यूट में मत जाए. अगर आपको कंप्लीटली कंफर्म है कि हमको हाँ बढ़िया मिल गया हमारा चॉइस, अभी हमको यहीं जाना है, तो आप सीट एक्सेप्टेंस दे दो ARC में और डायरेक्टली रिपोर्ट करो टू द इंस्टीट्यूट फ्रॉम 3rd to 5th, 3rd to 6th. दैट्स ऑल. लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि ऊपर का चॉइस मिलेगा तो अच्छा होगा, तो आप ARC में जाइए. ARC के बाद में आप बेटरमेंट के लिए एलिजिबल राउंड 2 में हो जाएंगे. इंस्टीट्यूट को मत जाओ. यू नीड नॉट गो टू इंस्टीट्यूट, बट ARC में सीट कंफर्म करनी पड़ेगी. ओके. अगर वो नॉट एक्सेप्टेड है सीट तो फिर ARC में मत जाओ, बट देन यू विल बी एलिजिबल फॉर राउंड 2. द इशू, ये दोनों में इशू क्या है कि जब सीट आप एक्सेप्ट करते हो तो नेक्स्ट राउंड में अगर आपको बेटर चॉइस मिलता तो वो मिलेगा, अदरवाइज तुम्हारी पुरानी सीट जो है वो बचेगी. लेकिन अगर पुरानी सीट आपने लिया ही नहीं है और उसके बाद में दूसरा कुछ मिला ही नहीं तो अगेन देयर इज नो यूज. सो द बेस्ट थिंग इज दैट सीट अगर अलॉट हुई है फर्स्ट राउंड में विच इज नॉट द फर्स्ट चॉइस, स्टिल यू गो टू ARC, accept the seat. Either you go to the institute, then it is finalized, or then you go for betterment and eligible for round. इंस्टीट्यूट में जाना है फिर यहाँ पे मत आओ. और अगर आपको सीट मिली ही नहीं है बिकॉज ऑफ सम मिस्टेक्स और बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, then you are still eligible for the round 2. So I'll take you to the next slide, what we do for round 2. Again, ये 6 तारीख तक काम चला था. 6 तारीख को हर इंस्टीट्यूशन उनके कितने फिलअप हो गए सीट से भेजेंगे कैप अथॉरिटी को, और कैप अथॉरिटी ये नोटिफाई करेगा कि अभी राउंड 1 के बाद में वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी पोजीशन क्या है, जस्ट लाइक द रेलवे रिजर्वेशंस. तो ये आपको 7 तारीख को मिल जाएगी. तो ऑब्वियसली फ्रॉम नेक्स्ट डे 8, 9, 10 3 दिन फिर मिलते हैं आपको, दैट यू कैन अगेन गो फॉर द ऑप्शन फॉर्म फॉर द कैप राउंड 2. अगर आपको सीट मिल गई थी तो आप फिर भी ऑप्शन 2 भर सकते हैं, राउंड 2 के लिए भर सकते हैं. लेकिन जो सीट मिली है वो अभी मत भरो बिकॉज दैट यू ऑलरेडी गॉट. यू कैन गिव बेटर सीट्स, बेटर चॉइसेस. Now after submission you again wait for computer to take over. So computer will now, it already has got the information of seats available, your ranks and your options. So it will go through its procedure, computerized procedure, and on 11th of December provisional allotment for cap 2 will be announced, displayed. Now when you are in round 2, again this 3 things will happen. सीट अलोकेट हो गई या फिर सीट अलोकेट नहीं हुई. अगर अलोकेट हुई है तो अभी आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया वो अगर मिल गया आपको तो फिर से वही प्रॉब्लम है.
अगर आपको फिर से सेकंड अलॉटमेंट में कैप राउंड 2 में पहला चॉइस मिल गया है, तो आपने एक्सेप्ट करना ही चाहिए और रिपोर्ट एआरसी में करके इंस्टीट्यूट में जाना ही चाहिए। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये पॉइंट पर भी आप फिर बाहर हो गए। सीट अलॉट हुए विच इज नॉट योर फर्स्ट चॉइस, देन अगेन यू हैव गॉट two things. Either you accept going to ARC and go to report to the institute, or you don't accept. If you don't accept, you are anyway out. And if you accept, you report to the institute. अब accept not accepted है या फिर सीट not allotted है, ये दोनों केस में अभी जो आपके पास पर्याय बचता है वो बचता है इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशंस। तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जहां जहां वो 20% उनका कोटा है, मोस्टली वो कोटा 2 महीने पहले ही फिल हो गया होगा, क्योंकि जिनको मालूम है कि हमको कुछ मिलने वाला नहीं, वो पहले मैनेजमेंट कोटा उसको बोलते हैं और उसी में चले जाते हैं। सो ऐसा मत सोचो कि इंस्टीट्यूट लेवल में हमको बहुत कुछ मिलने वाला है। सो दिस इज क्वाइट पॉसिबल। और ये जो प्रोसेस है फिर 11 तारीख को जो हो गया, तो 12 तारीख से 14 तारीख तक आपको सीट एक्सेप्ट करना है और इंस्टीट्यूट में जाना है। दैट्स ऑल। दिस इज द होल प्रोसीजर फॉर कैप राउंड सीट्स अलॉटमेंट। After first round, even before the first round gets over, the commencement of academic activities for all institutions will be there. They will not wait कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है, कि सेकंड राउंड में है कि और उसके बाद में है। 6 तारीख से ये कॉलेजेस की एक्टिविटीज शुरू होनी एक्सपेक्टेड है। एंड कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एडमिशंस इज 23rd। यानी इंस्टीट्यूट लेवल ये जो मैंने बताया आपको 14 तारीख तक, 14 दिसंबर को ये कैप राउंड 2 वगैरह फिनिश हो गया। उसके बाद में फिर से 8-10 दिन मिलते हैं जिसमें इंस्टीट्यूट लेवल की एडमिशन उनको क्लोज करनी चाहिए। एंड द लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द एंटायर डेटा डिटेल्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स बाय द इंस्टीट्यूट इज 24। यानी अगर इंस्टीट्यूट ने 23rd को क्लोज नहीं किया तो 24th वो फिर रिपोर्ट नहीं कर सकते, और उसके बाद में फिर जितनी भी एडमिशन होंगी वो सब इनवैलिड होगी। अगर कोई इंस्टीट्यूट करती भी है, कोई झूठा काम भी करता है, तो भी वो फिर इनवैलिड हो जाएगा एंड यू विल लूज द एडमिशंस एंड मनी एंड एवरीथिंग। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ कम्स द मेन पॉइंट। इतने सारे कॉलेजेस है, इतनी सारी ब्रांचेस है, इतनी सारी कैटेगरीज है, इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन है। हाउ डू वी सिलेक्ट? देयर आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई कैन टेल यू। एक तो सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन ब्राउजर में जाइए। मैंने बोला है, मैंने बताया, फिर भी आप जाइए और आपके लिए जो चीजें फ्रीज करिए, कैटेगरी फ्रीज करिए, उसमें क्या क्या, फिर वो कैटेगरी के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो पढ़िए। ये सब करने के बाद में आपको प्रिपेयर करनी पड़ेगी टेंटेटिव चॉइस लिस्ट। ये हार्ड कॉपी पेपर पे बनानी पड़ेगी, पेन एंड पेपर पे, बिफोर गोइंग टू ऑनलाइन फिलिंग चॉइसेस। इसके सेम 4 पॉइंट्स होते हैं कैसे कैसे करना। तो पहले क्या करना है कि आपको जो आपकी जो रैंक मिलेगी, आपको जो मेरिट लिस्ट में जो नंबर मिलेगा, आइदर दी कॉमन मेरिट लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट, ऑल इंडिया लिस्ट, होम लिस्ट, अदर देन होम लिस्ट, जो भी है, इसमें से जो आपको रैंक मिल रही है, तो उस रैंक को मध्य में रखते हुए कुछ रैंक्स पहले और कुछ रैंक्स बाद में ऐसे एक रेंज सिलेक्ट करिए। ले लो आप 200 रैंक पहले, 200 रैंक बाद में। यानी अगर मेरी रैंक समझो 1000 है, सो व्हाट आई विल डू इज 800 से लेके 1200 तक ये वाइड रेंज में ध्यान में रखूंगा, सो दैट माय रेंज इज इन बिटवीन। और फिर उसके लिए मैं चॉइसेस क्या है वो ढूंढना चालू करूँ। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग आर्बिट्री थिंग्स। नाउ प्रीवियस ईयर विल हेल्प यू, कि जिसमें आपको क्लोजिंग रैंक्स मिल जाएगी, मार्क्स पे नहीं रहता, रैंक्स पे रहता है। तो रैंक्स मिल जाएंगी, ऑल अवेलेबल चॉइसेस फॉलोइंग इन द अबव रेंज। ये आपको कागज पे लिखना पड़ेगा बाय विजिटिंग समथिंग समथिंग समथिंग। फिर आपको ये पूरी रेंज जब आप निकाल रहे हो तो उसमें ये मत सोचो कि मैंने यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। पहले उतार लो कागज पे, जितना भी मिलता है, 500 चॉइसेस मिलते हैं, कितने मिलते हैं, जितने मिलते हैं। देन यू स्ट्राइक आउट, शांत बैठ के स्ट्राइक आउट करो कि जहां आप जाना नहीं चाहते, जो जगह पे जाना नहीं चाहते या जो ब्रांच में जाना नहीं चाहते, वो कट कर दीजिए। अब जो बचे हुए 500 अगर आपने चॉइसेस निकाले थे और 300 अभी बचे, तो पूरे 300 चॉइसेस को
क्लोजिंग रैंक के हायर असेंडिंग ऑर्डर में रखो, यानी जिसकी क्लोजिंग 800 है वो टॉप पे आएगा और जिसकी क्लोजिंग 1200 है वो बॉटम में जाएगा। और मेरी जो रैंक है वो 1000 है, तो मेरे 1000 रैंक के आसपास के जो है वो बीच में रहेंगे चॉइसेस। इसमें प्रॉपरली ब्रांच इंस्टीट्यूशन कॉम्बिनेशन आपको प्रॉपर करना पड़ेगा, कैटेगरी वाइज ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम अगर गलत कर देंगे तो हो सकता है कि आपको अलॉट ही नहीं हो और फिर प्रॉब्लम में आएंगे। ये करना पड़ेगा। तो ये फाइनल पॉइंट में फिर ये रीअरेंज करो एज पर दी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द क्लोजिंग रैंक। 800 यानी मेरे एग्जाम्पल में लोएस्ट रैंक मैंने जो रेंज सेलेक्ट किया था वो 800 था, तो 800 वाला टॉप पे रहेगा, 1200 आखिरी का था वो नीचे रहेगा सबसे, और बीच के चॉइसेस आपको भरने पड़ेंगे। अब ये जॉब जो है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट। हियर iGAD is doing a great job. iGAD has prepared a portal, a web application, which is working since many years to help you. ये जो यहाँ पे लिंक दिया है वो लिंक आपको जूम पे भी श्वेता मैडम भेज देगी। ये लिंक पे जाएंगे आप तो ये दिस पोर्टल विल गिव यू द लास्ट ईयर्स ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स, कैटेगरी वाइज रैंक्स। तो जैसे आपका 1000 मेरिट आ गया है तो आप 800 से 1200 के बीच में अगर सर्च करना है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। योर जॉब विल बिकम प्रेटी सिंपल। इट्स ए ग्रेट एंड वंडरफुल वर्क डन बाय दी iGAD। इसमें लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, दिस इज द डेटा गिवन बाय द सेम साइट फॉर द लास्ट ईयर। एज आई हैव टोल्ड यू, मेनी चेंजेस हैव टेकन प्लेस सिंस लास्ट ईयर। कुछ इंस्टीट्यूशन बंद हो गई होंगी, कुछ की सीट्स कम हो गई होंगी, कुछ लोगों ने ऑफर कम किए होंगे कैप राउंड में, माइनॉरिटी कोटा है तो वो बढ़ा लिया होगा, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस हो गए होंगे। तो ये लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए आप ये लिस्ट बनाइए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ये सब काम करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है। सीट मैट्रिक्स यू शुड नो, योर ऑल डिटेल्स you should know, including the rank. So ranks will be known to you only after the final merit list is declared on 27th of November. उसके बाद में ही आपको ये सब काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो लिंक मैंने iGAD की दिया है दैट विल बी लाइव फ्रॉम मंडे, लेकिन आप उसको देख के रख सकते हो। एक हाइपोथेटिकल आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि ये अगर ऐसा डाला तो क्या होता है, और जब आपको आपका रैंक नंबर मिल जाएगा, मेरिट नंबर मिल जाएगा, तब उसका बहुत अच्छे से काम कर सकते हो। फर्स्ट चॉइस, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट चॉइस ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मली विच इज आउट ऑफ योर रीच, संभावना कम है, लेकिन अगर मिला तो हम दूसरा कुछ भी ना सोचते हो वहां जाने को एक पाव पे तैयार है, नो सेकंड थॉट। ऐसा फर्स्ट चॉइस होना चाहिए। विद दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन आई एम टेकिंग यू टू द फाइनल डिटेल्स। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, I think Shweta ma'am, are you there? Yes, sir. I'll be taking it forward. So you start. I'll share my screen. Yeah. And from this sheet you go onwards. Okay, I'll stop my sharing my. Yeah. Am I audible? Yes, you're all. Okay. Yeah, and my screen is there, right? Yeah. Okay. Please go ahead. Yeah. So good evening, all of you. Thank you, sir. We had a very nice guidance from you. Now I'll just tell you what are the important instructions from the reservation point of view, and what things we need to take care when we'll go for the particular filling up the form. So let's go through the point number 1, e-scrutiny center. So once you will confirm your online filled application form, you need to do a e-scrutiny.
It can be, you can do it physically or you can do it through e-scrutiny. There is an option which will show you in the video. So if in case अगर आप e-scrutiny नहीं करते हैं तो आप कैप और नॉन कैप दोनों राउंड से बाहर हो जाएंगे. So आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद e-scrutiny करना या सेंटर पे जाके स्क्रूटनी करवाना जरूरी है. सेकंड, जो कैंडिडेट SC, VJ, DT डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको नॉन क्रीमी लॉयर सर्टिफिकेट apart from SC and ST, all backward class candidates excluding SC and ST, उनको अपना जो सर्टिफिकेट सबमिट करना है that should be valid up to 31st March 2022. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो 31st March 2022 के पहले ही आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म हो रही है और आपने उसको अप्लाई कर दिया. अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया और आपकी वैलिडिटी रेंज के अकॉर्डिंग नहीं रहा तो यू विल नॉट be treated as a reserved category student. So आपको फिर जनरल कैटेगरी में काउंट होगा. इसलिए बी केयरफुल. द स्टूडेंट्स हु इज गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ कैटेगरी शुड प्रोड्यूस द सर्टिफिकेट व्हिच इज वैलिड टिल 31st March 2022. सेकेंड थिंग, इफ द कैंडिडेट्स जिन्होंने रिसिप्ट अभी अप्लाई किया है उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और उन्होंने रिसीट अपलोड की है, मैं आपको वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारे पास दो ऑप्शन है. एक आपके पास ऑलरेडी सर्टिफिकेट है और दूसरा आपके पास रिसिप्ट है सर्टिफिकेट की. अगर आपने रिसिप्ट सर्टिफिकेट के अप्लाई किए तो आपको सर्टेन डेट पे जब आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं तब आपको डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रोड्यूस करने में फेल हो जाते हैं, आपने अप्लाई तो कर दिया पर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, तो आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के कैप में आ जाएंगे. तो आपको जो रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट है वो नहीं मिल पाएगा. इसलिए जो स्टूडेंट बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं अपार्ट फ्रॉम SC and ST, उनकी वैलिडिटी सर्टिफिकेट की 31st March 2022 होनी चाहिए. प्लस जो स्टूडेंट्स के पास सर्टिफिकेट नहीं है बट उन्होंने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट के लिए, तो उनको जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं तब उनके पास वो डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए. अदरवाइज आप नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट काउंट होंगे. नेक्स्ट, EWS कैंडिडेट्स यानी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसका की आय कम है, बहुत सैलरी कम है, इनकम लोअर लेवल है, तो आपको EWS सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी है. इसके अंदर अगर आप वो सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको पता होगा कि आपको ये डेटेड सर्टिफिकेट ही वैलिड है. जिन स्टूडेंट्स ने रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई किया है बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेज पे वो क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको ऑनलाइन पेमेंट से 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा. द नेक्स्ट इज, एक बार अगर आपने अपना once the candidate confirms his or her option from online through his or her login, एक बार आपने अगर अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया है, आपने अपनी सारी डिटेल्स फाइनल अपलोड कर लिए, तो आप उन डिटेल्स को फिर से चेंज नहीं कर पाएंगे. 6th point which is very important, आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा. दैट इज प्रोविजनल. Take care of this point. This is provisional seat allotment letter, not a final. So आपको वो अपना seat allotment provisional letter download करके रखना है. 7th point, the seat acceptance fee which is 1000 rupee. आपको seat acceptance fee वो non refundable है और आपको ये fee पे करनी है ऑनलाइन मोड से ही. अगर आप कोई कॉलेज की सीट कंफर्म करते हैं तो आपको seat acceptance fees ऑनलाइन पे करनी है. बट आपका जो फाइनल कंफर्मेशन होगा, आपने एक ARC सेंटर पे गए, सेकंड आपने इंस्टीट्यूट में अगर कोई फाइनल इंस्टीट्यूट किया है तो वो इंस्टीट्यूट पे आपके सारे पेपर्स वेरीफाई करेगा. जब उसके आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे तभी आपको particular institute में admission मिलेगा. And admission in charge of institute shall issue the online receipt of admission confirmation to the candidate. आप ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ confirmation verbally या through message आ गया, वैसा नहीं, आपको online receipt भी admission confirmation की collect करनी है, जो admission in charge आपको institute का provide करवाएंगे.
Now this we had already discussed. E-document verification के लिए आपको कैप राउंड 1 में 5 PM के पहले या तब तक आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. अगर आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट काउंट होंगे, आपको कोई रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. सो आपको ई-डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो जैसा सर ने ऑलरेडी बताया कि आपको सीट एलोकेशन में बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं. सो द फर्स्ट क्राइटेरिया जो अभी हम सब स्टूडेंट्स जो हमारे साथ है वो सारे महाराष्ट्र स्टेट, मैक्सिमम आर फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट. तो उनके लिए ऑल इंडिया सीट एलोकेशन के थ्रू वो ले सकते हैं, माइनॉरिटी कोटा के थ्रू ले सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. ये सारे आपके अलग अलग कैप राउंड्स के प्रोसेसेस हैं सीट एलोकेशन के, जो सर आपको ऑलरेडी समझा चुके हैं. Now, this is important. जैसा अभी आपको सर ने बताया था, there are something called home universities, जिसे बोलते हैं HU, और out of home universities, that is OHU. तो हमारे पास home universities कौन कौन सी हैं? First, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसका डिस्ट्रिक्ट अंडर जुरिडिक्शन आएगा औरंगाबाद, बीड, जालना एंड ओस्मानाबाद. सेकंड है स्वामी रामानंद तीर्थ मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी, इसमें हिंगोली, लातूर, नांदेड़ एंड प्रभानी आएगा. सो आप ये सारा देख सकते हैं. मुंबई यूनिवर्सिटी में मुंबई सिटी, मुंबई सबअर्बन, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग एंड थाने. तो आप जहां से बिलोंग करते हैं वो उस हिसाब से आप अपनी होम यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नागपुर के लिए देखना. तो आप देख सकते हैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, इसके अंदर भंडारा, गोंदिया, नागपुर और वर्धा के स्टूडेंट्स हैं. तो इस तरीके से हर यूनिवर्सिटी का आपको हर स्टेट होम यूनिवर्सिटी बताया हुआ है. फिफ्थ पॉइंट आता है कैंडिडेट टाइप. कैंडिडेट टाइप में डिफरेंट टाइप के हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी एंड टाइप ई. सो लेट्स अंडरस्टैंड टाइप ए और टाइप बी क्या है. टाइप ए में वो स्टूडेंट्स फॉल करेंगे जिन्होंने HSC और SSC, कैंडिडेट्स पासिंग SSC एंड आल्सो HSC, यानी SSC भी और एंड नॉट और SSC एंड HSC दोनों ही उन्होंने अगर महाराष्ट्र स्टेट से की है तो वो सारे कैंडिडेट्स आएंगे टाइप ए के अंदर. टाइप बी के अंदर वो कैंडिडेट्स आएंगे जो कि टाइप ए में नहीं है बट उनके मदर या फादर में से किसी एक के पास महाराष्ट्र स्टेट का डोमिसाइल है, यानी जिसे हम लोग मूल निवास प्रमाण. क्या मैडम एक इसमें यह है कि टाइप ए में if the students have passed SSC and HSC both exams from महाराष्ट्र, वो भी है. हम डायरेक्ट सेकेंडरी के लिए नहीं जा रहे, केवल फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं. दूसरा वो भी होता है कि कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड और ही इज बॉर्न इन महाराष्ट्र, ये भी टाइप ए में आएगा. इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं है. ओके. और होम यूनिवर्सिटी उसके लिए वो होती है जहां से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में 12th एग्जामिनेशन जहां से पास किया है, दैट इज हिज, जो प्लेस से पास किया है वो दैट इज होम यूनिवर्सिटी. या प्लीज प्रोसीड. Yes, sir. Now, this is type B, the candidate who does not fall in type A, but whose father or mother is domiciled of Maharashtra state, वो type B में आएंगे. Type C, the candidate who does not fall in either type A or type B, but whose father or mother is an employee of the government of India, यानी सेंट्रल इंडिया के एम्प्लॉय हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड हु हैज बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन महाराष्ट्र स्टेट, यानी पेरेंट्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है बट उनका पोस्टिंग महाराष्ट्र स्टेट में है. तो ये सारे कैंडिडेट्स टाइप सी में आएंगे. टाइप डी, अ कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन एनी ऑफ द अबव टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी, but whose father or mother is an employee or retired employee of government of Maharashtra or government of Maharashtra undertaking. So type C और type D में difference क्या है? type C में हम लोग central government के employees हैं but posted महाराष्ट्र state में है. type D में महाराष्ट्र government और
अंडरटेकिंग महाराष्ट्र गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं या उनके एम्प्लॉय हैं, वो टाइप डी में आएंगे। टाइप ई, ये आउटसाइड होम यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल सीट्स की बात है। Candidates passing SSC or HSC examination from a recognized institution located in Maharashtra, Karnataka border area, or from Maharashtra, residing in the Maharashtra, Karnataka border area, but same time their mother tongue should be Marathi, right? So आप महाराष्ट्र और कर्नाटका बॉर्डर एरिया पे हैं, बट आपकी मदर टंग मराठी होनी चाहिए, so you'll come under the category of type E. For direct, this is not for you. Now the all India candidate, the candidates having Indian nationality are under this category. Minority candidates, it can be on the basis of language, it can be on the basis of domicile, or it can be notified by the government, are eligible under this category. NRI candidates, the candidates who fulfills the conditions as defined, this is not for us now. ARC admission reporting centers. So ARC is admission reporting centers, जैसा सर ने बताया था. I'll just show you where this link is there on the website. आप आराम से ARC centers देख सकते. ARC centers actually होते क्या हैं? Candidates have to report to ARC in schedule time. हमने आपको already time table बताया है. आपको ARC center पे जाके अपने document submit करने हैं और जो भी process है उसको follow करना है. Right. Now, these are very important points. First preference allotted. आपने जैसा सर ने बताया कि आपने अगर कोई कॉलेज फर्स्ट चॉइस दिया है और आपको वो कैप राउंड 1 में ही वो कॉलेज मिल गया, तो you will have to take admission in the same college, because आपकी जो highest priority कॉलेज था वही कॉलेज आपने ले लिया है, वही आपने फिल किया था, वही कॉलेज आपको अलोकेट हो गया. तो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम से ये फिक्स हो जाएगा कि आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है. इसलिए आप कभी भी ऐसा कॉलेज टॉप प्रायोरिटी पे मत रखिए जिसमें आपको जाने की इच्छा नहीं है. उसको थोड़ा नीचे रखिए. जो आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स वगैरह देख के उसको अरेंज करिए, जैसा मेथड आपको सर ने बताया था. सो अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज ही अलोकेट हो गया तो आपको कंपलसरी वहां पे एडमिशन लेना है और सारे प्रोसेसेस करने हैं. इन केस आपको लगता है फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज allocate तो हो गया, but I don't want to take admission in that college, then you will be out of all the cap round. So आपके पास कोई choice नहीं बचेगी. इसलिए आपको allotment कॉलेज फिलअप करते टाइम आप पहले शांति से बैठ के पेन पेपर पे लिस्ट डाउन आपकी प्रायोरिटीज करिए, लोकेशन वाइज लिस्ट डाउन करिए. जैसे सर ने एक आईसीटी कॉलेज का एग्जांपल दिया था, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी विच इज लोकेटेड इन मुंबई माटुंगा. वो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए कई कैंडिडेट्स जिनको केमिकल इंजीनियरिंग में ही जाना है, वो कई बार आईआईटी छोड़ के आईसीटी कॉलेजेस में जाते हैं क्योंकि उनका एम होता है कि उनको केमिकल इंजीनियरिंग में जाना है. सो आप अपना एम, अपना सिटी सब कुछ डिसाइड करके, ब्रांच डिसाइड करके फिर आप चीजों को लिस्ट डाउन करिए. फ्रीजेस अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस. तो पहला हो गया, आपने जो चॉइस फर्स्ट प्रेफरेंस दी वही आपको मिल गई तो आपको लेनी है. बट अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपने फिल की वही नहीं मिली तो आपको क्या करना है? उस केस में आपको पहले आप अपनी प्रेफरेंस फ्रीज कर सकते हैं और आप एआरसी सेंटर, आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना है. इस केस में आपको एआरसी सेंटर जाना है, सीट एक्सेप्टेंस करना है और आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे. बट बिकॉज आपने जो चॉइस फ्रीज की है वो आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं थी, तो आपको आगे के कैप राउंड्स में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी चीजों को एडिट करने के लिए. सो फ्रीजेस अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, आप उसको फ्रीज करके एआरसी सेंटर पे जाइए. आप इंस्टीट्यूट में अभी रिपोर्ट मत करिए. बेटरमेंट, दिस इज व्हाट बेटरमेंट मींस. Candidates who have been allotted seat other than first preference. इसमें दो टाइप के कैंडिडेट होंगे, जिनको वो सीट मिली है जो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है और उन्होंने एआरसी सेंटर्स पे जाके कंफर्म भी कर ली है सीट को. सेकंड वो कैंडिडेट होंगे जिन्हें
सीट फर्स्ट प्रेफरेंस को छोड़ के दूसरी मिली है, बट उन्होंने सीट एक्सेप्ट नहीं की है. सो आई जस्ट रीड द पॉइंट्स अगेन. Candidate who have been allotted seat other than first preference and accepted the seat by reporting to ARC for confirmation of seat acceptance as per the method described by the, जो हमने already discuss किया है कि आपको कैसे कैसे करने पर, they can participate in subsequent rounds of betterment. 3D, candidate who have been allotted seat other than first preference and not accepted the seat. 3C में आपने सीट ARC जाके एक्सेप्ट कर ली है, बट 3D में आपने ARC को रिपोर्ट नहीं किया है. ये दोनों टाइप के कैंडिडेट फर्दर राउंड यानी कैप राउंड 2 में बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. Okay, so this is written very clearly. The seats available for round 2 shall be published on the website. हमने already आपको dates बता दिया है. So left जो seats रहेंगी वो सारी seats आपको website पे दिखेंगी. उसमें 4A का फर्स्ट पॉइंट बहुत क्लियर है, बेटरमेंट वाला पॉइंट जो हमने 3C और 3D पॉइंट देखा था, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है. 3C और 3D यानी आपको फर्स्ट चॉइस वाला अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आप बेटरमेंट के लिए, चाहे आपने ARC में अप्लाई किया, रिपोर्ट किया है या नहीं किया है, दोनों केस में आप बेटरमेंट के लिए फिर से कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. और कौन एलिजिबल होता है कैप राउंड 2 के लिए? कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स, यानी प्रीवियस राउंड्स में जिनको कोई भी कॉलेज नहीं मिला है वो लोग भी बेटरमेंट यानी कैप राउंड 2 के लिए, बेटरमेंट नहीं बोलेंगे इसे, कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल है. कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेट और फेलियर ऑफ फिलिंग ऑप्शन फॉर्म इन प्रीवियस राउंड, वो वाले कैंडिडेट्स भी कैप 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. यानी कैप 1 में जिन्होंने फर्स्ट चॉइस फिल किया और वही चॉइस उनको अलोकेट हो गया, वो सारे कैंडिडेट्स वहीं रुक जाएंगे कैप 1 में. कैंडिडेट्स जिन्होंने सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस यानी फर्स्ट चॉइस जिनको नहीं मिली, ARC में उन्होंने रिपोर्ट किया है, वो कैंडिडेट्स और ARC में नहीं रिपोर्ट किया है, या फिर वो फिलिंग ऑप्शन भरना रह गया उनका, या उनको कोई भी सीट अलोकेट नहीं है, वो सारे कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं. कैंडिडेट्स हु हैव बीन allotted सीट अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, अब यहाँ पे आपको समझना रहेगा कि आपने जो फर्स्ट प्रेफरेंस छोड़ के आपको कोई और प्रेफरेंस मिला, कोई और सीट मिली है और आपने ARC में भी कंफर्म कर दिया है, तो आप जब ऑप्शन फॉर्म भरेंगे तो आपने जो पहले प्रेफरेंस दिया था कॉलेज को वो आपको फिर से नहीं भरना है. बिकॉज आप बोल रहे हैं कि मुझे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए इसलिए आप कैप राउंड 2 में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको वो ऑप्शन फिर से नहीं भरना है. लॉजिकली आपको समझ आ गया होगा कि आपने जो पहले प्रेफरेंस दिया था वो कॉलेज छोड़ के आप दूसरे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसलिए आप कैप राउंड 2 में जाना चाहते हैं, इसलिए आपको सेम कॉलेज फिर से नहीं भरना है. अब इसमें आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज ये है कि आपने जो अपवर्ड प्रेफरेंस अलॉट होती है अगर किसी कैंडिडेट को, यानी आपको जो कॉलेज अलोकेटेड हुआ है आगे के राउंड्स में आपको उससे ऊपर रैंकिंग वाला जो आपने चॉइसेस दी हैं वो मिलता है तो ही आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा. अदरवाइज आपका प्रीवियस अलॉटमेंट स्टैंड रिटेन्ड वैसा का वैसा रहेगा. यानी ऐसा नहीं है कि आपके हाथ से कोई चॉइस निकल जाएगा, आपने जो पहले चॉइस दिया था वो सेम मिल रहा है आपको, बट अगर आपको ऊपर वाला प्रेफरेंस मिल गया तो आपका वो छूट जाएगा, आपको ऊपर वाला प्रेफरेंस मिल जाएगा. अदरवाइज यू आर सेफ हियर, आपका सेम जो अलॉटमेंट स्टैंड है वो सेम रहेगा. कैप राउंड 2 के बाद यहाँ पे कोई भी बेटरमेंट ऑप्शंस अवेलेबल नहीं रहेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैप राउंड 2 इज द फाइनल राउंड, सो उसके बाद कोई भी बेटरमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहेंगे. Point number D, at the time of reporting to ARC for confirming the allotted seat as per the method prescribed by the authority, the candidate should submit all the original documents, supporting document. आपको सारे documents at the time of admission और ARC पे प्रोड्यूस करना. अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली आपका सारे जो भी अलॉटमेंट है वो कैंसिल माने जाएंगे. And the seat shall become available for allotment in further rounds. Now I'll just share with you a video.
there is a video. See, I'll show you how to go to, you must have visited the website, then to I'll just tell you how to visit. Just go to Google, search MSTCET official website. You will find the first link, cetcellmahacet.org. Once you click on this, it will show you all these links. आपको BE BTech अगर कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको BE BTech कोर्स पे क्लिक करना है. आपके सामने ये ओपन होगा. इसमें अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स, वहां पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो क्लिप है. सो अगर आप ये वीडियो क्लिप पे क्लिक करते हैं तो यू विल फाइंड अ यूट्यूब वीडियो जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने ही अपलोड किया है. I'll just show you how this video will look like. ये आपको ऑलरेडी ऐसा वीडियो दिखेगा. Vaidya sir, you want me to explain this video? No. That is available. That you have Yes. shown. So I think we can conclude at this point. Correct. And we can go directly for the question answer session. Yes. So if you have any question answer, you can ask the question answer. Sir is there to help you out. Excuse me, ma'am. In chat box, if you put, it will be better. I have got a few things. The first question is how rank is decided if percentile is same. अभी आप percentile को percentile मत बोलिए, that is a score. So score in physics, chemistry, maths and total. तो अगर total score same है, तो आप अगर ब्राउज़र में जाएंगे, क्योंकि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, तो आप ब्राउज़र में जाइए एंड आई विल टेल यू ऑन पेज नंबर probably 18. Okay, sir, I'll just open it. Not 18. There is a procedure given, but I'll explain to you the procedure in very brief. If the total score is of MSTCET is same, then the score जिसका mathematics में ज़्यादा है, that will be ranked first, then followed by physics and then followed by chemistry. यहाँ पे वो इंटर से मेरिट बोलते हैं उसको. If you can share that preparation of merit list, I'll explain. Okay, sir, I'll do that. That is page number 19. Page number 19. Okay, sir. It starts, preparation of merit list starts on page number 19. If you can open next page, that is 20, then I'll read it out. Yes, sir. So provided that in case of tie, the relative merit of candidate shall be resolved in the following order of preference and the methodology as specified below. तो अगर total percentile same है या total score same है, तो first higher marks in mathematics at CET, then higher marks in physics at CET, then higher marks in chemistry in CET. फिर the percentage of PCM in the 12th, उसके बाद में higher marks in mathematics in board, higher marks in physics in board and higher marks in aggregate marks in HSC. इतने सारे क्राइटेरिया लगते लगते आपका वो रिजॉल्व हो जाएगा और ये काम इंटर से मेरिट तैयार हो जाएगा. So that's all. Then see this the queries like this. I have got 96.8 in MSTC. I want to take CS and IT branch. Which college is better for me? Either autonomous, government college or ये ऐसे जितने भी क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे कि मेरा ये स्कोर और मेरे को ये लेना है, क्या करना, हाउ टू चूज कॉलेजेस. माय सिंपल एडवाइस इज दैट डोंट आस्क दिस क्वेश्चंस राइट नाउ. पहले आपका मेरिट नंबर आने दीजिए, उसके बाद में मैंने जो बोला है आपको वेबसाइट पे जाके अपने आईकेड के पोर्टल पे जाके आपकी रेंज निकाल लीजिए
और उसको अरेंज करिए इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक, दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो जिस कॉलेज की क्लोजिंग रैंक ऊपर है, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने रेंज लिया था 800 से लेके 1200 तक, तो ऑब्वियसली जो 800 जहां क्लोजिंग हो रहा है, दैट कॉलेज इज फार 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 बेटर देन द कॉलेज वेयर द क्लोजिंग रैंक इज 1200। तो अगर आप केवल सीएस के देखते हैं तो आप सीएस में भी ये काम कर सकते हो, आईटी में ये काम कर सकते हो, फिर उसमें पता लगेगा कि ऑटोनॉमस कॉलेज ऊपर है या नीचे है, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। So that part you have to take care only after the list is published. ARC, as explained by Madam, is a admission reporting center that comes into picture when the seat is allotted to you either in cap round 1 or in cap round 2. वो लिस्ट अवेलेबल है वहां पे, वो लिस्ट से आपको वेबसाइट पे है, वहां से जाना पड़ेगा। दिस आई ऑलरेडी आंसर्ड। रैंक कैसे डिसाइड होती है, तो 5-6 क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से डिसाइड होती है। OCI स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बोलना डिफिकल्ट है, क्योंकि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, बट हाउएवर मैम यू कैन टेक द नंबर ऑफ दिस और द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु वांट्स द OCI कैटेगरी, उसको बाद में बुला के आप बता सकते हैं। मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है, बट मुझे अभी कैंडिडेट टाइप चेंज करना है फ्रॉम B to A। अगर ये पॉसिबल होता है तो आपको कर सकते हो, एंड इफ देयर इज अ डिफिकल्टी देन यू गो टू दैट स्क्रूटिनी सेंटर एंड फाइंड आउट वेदर यू कैन डू इट और नॉट। Do we prefer Maharashtra top colleges over GFT allotted through JOSA? Yes, it depends on the status or the stature of the college. Maharashtra college में आप जहाँ जाना चाहते हो उसका रिलेटिव स्टेटस आपको कंफर्म करना पड़ेगा, and that you can confirm by discussing with somebody who is studying in this both the colleges, और फिर आपको पता लग सकता है कि कौन सा कॉलेज अपने प्रिफर करना चाहिए। ARC center will take document or just I don't know, probably they will keep the document because they will transfer these documents at the end of the all rounds to the institute. They will not give you back. If I got seat in JOSA and I accept it, then will I be able to take admission in CP? CP राउंड में आप एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट का ही है, तो गवर्नमेंट के इसमें वो कैंसिलेशन वगैरह वो होता है। किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए है रिगार्डिंग द क्वेरीज विद द कॉलेज एंड ब्रांचेस, इट कैन बी गिवन, बट वो तभी पॉसिबल है जब आप रैंक का जो मैंने काम बताया है वो करके आएंगे तो कोई फायदा होगा। यानी आप पूरा जो मैंने प्रोसेस बताई चॉइस फिलिंग के लिए, ऑफलाइन में क्या करना है, पूरे रैंक्स कैसे निकालना है, अरेंज कैसे करना है, वो निकाल के लाएंगे, देन वी कैन डिस्कस द रिलेटिव मेरिट। सी ICAT वेबसाइट मंडे से हो जाएगी, लेकिन वो मेरिट नंबर से जाती है, तो मेरिट नंबर आपका अभी आया नहीं है, लेकिन आप एक आर्बिट्री नंबर डाल के देख सकते हो ना, उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कैसे क्या क्या होता है। born in Bhopal but pass 10th and 12th एग्जाम फ्रॉम नागपुर, तो कैटेगरी में कौन से में आएंगे? ए में आएंगे, बिकॉज यू हैव पास बोथ द एग्जाम्स फ्रॉम नागपुर। ये जो भी रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहे हो, आपको वो सेंटर पे, स्क्रूटिनी सेंटर पे जाके रेक्टिफाई करने पड़ेंगे। इनवैलिड इनकम सर्टिफिकेट जो भी है, ये आपको वहीं पे करना पड़ेगा। ये ICAT SL ने ये सबके लिए मैसेज दिया है, प्लीज विजिट www.icatiit.in। ये जो मैंने लिंक बताई थी वो मैडम ने शेयर किया है, तो कैटेगरी वाइज आपको ओपनिंग क्लोजिंग लास्ट ईयर का मिल जाएगा। Can I rely on provisional merit list if all my details are correct? You can relay, लेकिन जिसका गड़बड़ हो गया होगा वो आपके ऊपर जा सकता है, यानी your relative position can change. एडमिशन कंफर्म करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट नहीं जाना है, वो ARC में जाना है, और ARC में सब कुछ होने के बाद में
अगर आप वो सीट फिक्स हो गई है आपकी, तो फिर आप इंस्टीट्यूट में जाइए। ये जो है 10th फ्रॉम यूएसए और एचएससी फ्रॉम पुणे, लेकिन डोमिसाइल है, तो डोमिसाइल अगर है तो आई थिंक डोमिसाइल का मतलब इफ यू आर बोर्न इन महाराष्ट्र देन यू स्टिल विल बी इन ए। आपने फिल कर दिया एरिशन ऑनलाइन और एफएम मिल गई, एंड देयर इज ए कॉलम सील एंड सिग्नेचर। उसके वो आपको थोड़ा सेंटर पे कॉल करके पूछना चाहिए। इफ इट इज ए कंप्यूटर जनरेटेड, आई डोंट थिंक सील इज नेसेसरी, बट इफ दे say that seal is necessary, then you have to visit the center and get it. जेई एडमिशन प्रोसेस में अगर डॉक्यूमेंट लगता है तो आपको वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मेरे यहाँ सबमिटेड है। इफ आई गेट एडमिशन आई विल सबमिट द डॉक्यूमेंट्स। There is one question, should I take a drop? In no case you should take a drop, because if you take a drop you will be behind 1 lakh engineers by the time you complete degree. So wherever the best thing you are getting, that you take, whatever mistakes or shortcomings are there, you try to rectify in 4 years, and then be ready for another 3 options, either MTech from a good institutions or MS from abroad or MBA. First is the job and then MBA. तो ये सब पॉसिबल होता है, तो ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आई डोंट एडवाइज। Unless of course there is only one specific genuine case to take drop, and that is you are very well prepared to get a very top institution, but unfortunately because of sickness or something you could not do it, means you got a low score which was not in your control. अगर ऐसी बात है तो फिर हम सोच सकते हैं, but for this you can discuss with me in ICAD and we'll find out whether it is appropriate or not. See, if we don't accept round 1 college and wish betterment, तो आपका पहला कॉलेज आपने एक्सेप्ट किया ही नहीं था, तो आपके पास रहेगा ही नहीं। So that is why I advise that round 1 में आप ARC में जाके एक्सेप्ट कर लो और बाद में आप बेटरमेंट के लिए जाओ। ए एंड बी में जो डिफरेंस है वो क्लियरली वहां लिखा हुआ है। डोमिसाइल, फादर मदर का डोमिसाइल भी आता है उसमें। अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में नहीं है तो फिर आपको ये सब ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे। यू जस्ट गो थ्रू इट, इट इज वेरी क्लियर। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विल हैव अ मेरिट नंबर व्हिच यू कैन से रैंक नंबर। Sir, do we have to fill the form of DT as well after filling the form of an autonomous college in Nagpur? See, autonomous college के जो आप फॉर्म भर रहे हैं वो उनके सीट के लिए, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए है। If you want to participate and get through the CAP round, government round, then you have to fill the DT form. What is the institute quota seats and how to take? ये शायद इंस्टीट्यूट कोटा जो होता है वो तो अभी तक पूरा भर गया होगा, क्योंकि ये तो कभी इंस्टीट्यूट कोई खाली नहीं रखती। बट इफ एट ऑल यू वांट टू इंक्वायर, देन यू हैव टू गो टू द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड इंक्वायर। Yeah, ARC and facility center, they are same. Madam has shared a link finally of that YouTube video for the complete process as given by the official website. So please do all these things. You have got some time available. Don't commit mistakes and try to do all these things. Finally, yes, my last session, this is my last session. Farewell होगा। अगर आप कॉलेज मिलता है तो फेयरवेल होगा, ड्रॉप आउट है तो फिर फेयरवेल थोड़ी होता है। बट एनीवे, लेट अस वेट फॉर फेयरवेल। डीटी फॉर्म्स फिल रिलीज क्या है? डीटी फॉर्म का मतलब कौन सा है? यही है अभी आपका प्रोसेस जो है वो कैप राउंड।
So thank you very much. You participated and yeah. So I wish you all the best from my side, from the entire team I get, and see that you take benefit of all these sessions, whatever we have done, and see you at better places after 4 years or 6 years. Thank you very much. All the best. Sir, Thank you, parents. Yes. sir, I would like to talk to you about something like CSAV SAB rounds. What is that? So SAB rounds, CSAB rounds, special Now, rounds. these rounds you please come to ICAT because ये केवल इसका यहाँ पे मैं कर रहा हूँ session. We'll have to study and then tell you. So you Okay, thank you, sir. get in touch with either a coordinator madam or Shweta madam. Thank you, Yeah, sir. you please contact Ansha. You please contact to coordinator and tell her to connect to me. My name is Shweta. I'll resolve your things. Okay, thank you, ma'am. Okay. For all other inquiries, you follow the same thing. Thank you very much. Stay safe, stay healthy. All the best and good night. Thank you, sir. Thank you, sir. All the best, student. Bye-bye. Good night.